women are entrepreneurs and somewhere अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म देते हो कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज को बाहर निकालें, और जब एक माँ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चों में तो डेफिनेटली इट मैनिफेस्ट्स इन देयर पर्सनालिटी। जो हमारा रंग साड़ी ग्रुप है जिसको हम कुनबा बोलते हैं। This question is for all the housewives who are listening right now, who are looking at us. Was there ever a moment when you felt like giving up? We as housewives or women, sometimes like you're wearing a sari, you're wearing a dress, you've done something, you want some sort of appreciation. Men have no option, they have to earn. किसी को appreciate करना आजकल के जमाने में बहुत difficult है. That is the whole motive of Rang Sari. I feel I'm complete now. We all women are super empowered. अगर हम साड़ी पहनकर अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे कि ये हमारा कल्चर है, ये रिच कल्चर है इंडिया का, तो वो कभी भी नहीं पहनेंगे. This is why I do what I do. You are so unsure about yourself, about how things are going to shape up. ऐसी कोई संसार में नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट नहीं है. My last question. जब हौसले हो चट्टानों से तो कह दो बुलंदियों से अपना रुतबा थोड़ा और मजबूत करें. घर में भी देखिए, लेडीज लड्डू बनाती हैं, पापड़ मंगोड़ी बनाती हैं, वो भी एक टैलेंट है. क्या करूंगी मुझे खुद अंदाजा नहीं था. सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. Let's talk about struggles as well. अब आपने ऐसे एक दुखती रग पे हाथ रखा है बहुत लेडीज का, तो आज तो बोलना बनेगा ही बनेगा. मैं जिस भी शीशे में वो अपने आप को देखूं, मुझे एक ऐसा चेहरा नजर आना चाहिए जो खुश हो. लेडीज स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ दैट इम्पोर्टेंस, एंड जब आप दोगे तो घर वाले अपने आप आपको देने लग जाए. इंडियन आर्ट और कल्चर जो है वो इतना रिच है. ऑफकोर्स साड़ी को हम एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं. कोई भी शादी गठबंधन के बिना ना हो. Our artisans, our weavers can do wonders. गठबंधन एक वेडिंग मैगजीन है. उस एक मैगजीन में वो सारी एजेंसीज आपको अवेलेबल है. You need a purpose, a voice, and a little bit of urja. So crossing my fingers. Welcome back to Trust Your Journey 1.0, where stories don't just inspire, they ignite transformation. Today's guest is the living embodiment of Ghar Se Sanskar Tak. She was a housewife with no formal business background, but with words in her heart, passion in her hands, and saris in her soul. Today, she is a thriving woman entrepreneur, YouTuber, director at Gadbandhan, founder of Rang Sari, and the voice behind Let Urja Talk. More importantly, she has built a community of over 320 plus women entrepreneurs, empowering them with financial literacy and confidence. Welcome to the show, Urja Nidhi. We are honored to have you. So, Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me, and I'm truly privileged to be a part of this. Urja ji, I know your name is Nidhi, but we'll denote you Urja ji for this podcast because you have that, you have given us that Urja. So, Urja ji, this leads to me to my first question. Your love Yes. for saris became the spark that lit up your entrepreneurial journey. Yeah. Can you take us back to the moment this spark turned into a purpose? Actually, I was doing a lot of things with a lot of people. I was writing for someone, editing for someone, some magazine, and you're playing the role of a subordinate. And then finally, it struck me one day that why not do something to pursue my own passion. And I had to think about what I was passionate about. And then it came to my mind, I'm passionate about saris. So when I spoke to one of my friends regarding this, she said, Nidhi, what are you going to do with saris? Saris के साथ क्या कर सकते हैं? Either you sell it or you buy it. I mean, that's what you can do. I said, okay, it's okay. Let's make a group. Let it start. Let's see what comes of it. And then we started, commuting with each other and building our cult, and then somehow things started cropping up. I said, let's spread happiness. That was the main content, because we as housewives or women, sometimes like you're wearing a sari, you're wearing a dress, you've done something, you want some sort of appreciation, some sort of acceptance. That acceptance was much needed. And then I started posting pictures in saris, and the first compliment that you get
you post a picture of yours. It may not be, getting a trophy or something, standing on a podium. It is just normally you're wearing a sari and you post it, and someone said, अरे यार ये तो बड़ी गुलाबी गुलाबी आज दिन हो गया. तो इससे ही ना, अब ये सोचिए, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो एक मन में बहुत खुशी होती है कि देखो True. कोई है जिसे मैं नहीं जानती, जो कहीं दूर बैठा है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सुकून सा एक महसूस हुआ कि, तो पर धीरे धीरे वो बाय वर्ड ऑफ माउथ, मैंने कहीं सच कोई पब्लिसिटी नहीं की कि क्या करूंगी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था. और धीरे धीरे करके हमने इस कल्ट को बढ़ाया. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी आज एक लेडी उस ग्रुप में, जो हमारा रंग साड़ी ग्रुप है, जिसको हम कुनबा बोलते हैं, हम उसे ग्रुप में रेफर किया है मैंने अभी, और जबकि हम इसको कुनबा बोलते हैं. और उसमें कुनबे में हमारी सखियां जुड़ती चली गई, जिसमें एज नो बार है. एंड वहाँ मेजरली वो इसलिए है कि हम उसमें कोई बिजनेस की बात नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर मतलब ग्रुप में. उसमें हम सिर्फ एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं. Wow. एक दूसरे को हम, चाहे वो पोइट्री लिखे कोई, या कोई पेंटिंग भेजे, सिर्फ एक सिंपल सी आपने कोई डिश बना दी और आपने साड़ी में उसको पोस्ट कर दिया. बिकॉज किसी को अप्रिशिएट करना आजकल के जमाने में बहुत डिफिकल्ट है. एंड व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं किसी को जेन्युइनली, व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, तो आपके ऑरा में भी एक ब्राइटनेस आती है. योर ऑरा स्टार्ट्स ग्लोइंग इन अ डिफरेंट वे. सो दैट इज द होल मोटिव ऑफ रंग साड़ी. एंड ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल पार्ट है वो बाद में आए, क्योंकि हमेशा एक पिक्चर पोस्ट करके आप ग्रुप को एंगेज नहीं रख सकते हर वक्त. एंड विमेन आर एंटरप्रेन्योर्स, एंड समवेयर अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म देते हो कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज को बाहर निकालें, और उसको एक मतलब एक वाइडर विजन मिले, उनको एक वाइडर क्या कहते हैं ऑडियंस मिले, तो डेफिनेटली उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव बात रहेगी. सो दिस वाज वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ रंग साड़ी दैट वी स्टार्टेड प्रमोटिंग. Wow, and it's such an inspiring thing to hear this that the cult which you formed bases your own passion. So even this is inspiring for me too, right? It's not only for women who are watching out this or listening to us. It's for the men's as well, like how one can turn a passion into a beautiful thing which can give happiness to each other. That's what we're here for, and that's what you did. And this leads to me, Uja ji, to my second question, because from homemaker to change maker, many women silently dream of becoming something more, but feel trapped by their internal doubts or duties. What mindset Yes. shift helped you break through that belief barrier? Because you were See, a I was housewife earlier. also Yeah. absolutely. I was a highly domesticated housewife for almost like 13-14 years. And then कहीं ना कहीं दिल में एक जज्बा होता है कि यार अपने लिए भी कुछ करो. आप लिख रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो मैं ये समझती हूँ, अगर दिन में एक काम आपने अपनी पसंद का कर लिया, जिससे आपको एक खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मेरा भी कोई वजूद है, तो वो मतलब बहुत बड़ी बात है. एंड जब मेरे मन में ये जज्बा आया, तो मैं फिर मुझे लगा कि सब लेडीज को ऐसा ही लगता होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कर सकें. और जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेट मी टेल यू अविनाश जी, वी ऑल वुमेन आर सुपर एम्पावर्ड, बट समटाइम्स यू नीड दैट पुश, दैट नच, कि मतलब कोई एक हैंड होल्डिंग कर दे, कोई बोलते अरे हाँ कर सकते हो, बिंदास करो, देखा जाएगा जो होगा. तो वही वो हिम्मत आती है. आपने वो सुना ही होगा, बिल्कुल सबको पता होगा, कि जब हनुमान जी को लंका पार करनी थी, उनके पास वो पावर्स थी सारी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेटेंट थी. तो उनको जब बताया गया कि देखिए आप में पावर्स हैं, उनको जागृत करो, तो वही एक है कि जागृत करना बहुत जरूरी है. एंड at our age, like when women of our age, we have done this, done that, everything we've done, we've got experience, we've got that energy. और आप किसी को अगर कोई किसी चीज के लिए मालिकाना हक मिलता है, तो वो उसमें इतना जबरदस्त एक्सेल करेगा, मैं ये समझती हूँ. तो अगर हम लेडीज को, जितने भी हमारी एज की लेडीज हैं, तो जितना हमने प्रोग्रेस किया है, हमारी लेडीज, क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव नथिंग टू लूज, वी ओनली हैव थिंग्स टू गेन. एंड हमारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. तो बस वही है कि कभी कभी कोई एक हाथ पकड़ने, एक उंगली पकड़ने वाला चाहिए, कि हाँ करो, मैं साथ हूँ, तो उतने में ही हमें हौसला मिल जाता है.
क्या बात है ऊर्जा जी, एंड यू डिस्क्राइब्ड इट ब्यूटिफुली, द माइंडसेट शिफ्ट विच विल हेल्प ऑलवेज, कि अपना खुद का जज्बा एंड द पैशन होना। वो हो, जी। वो होगा, और एक हेल्पिंग हैंड वो मिल जाए। सो वुमेन कैन डू वंडर्स, एंड वंडर। वुमेन आर डूइंग वंडर्स। हम लोगों को कोई तो वुमेन नहीं पैदा किया है ना, राइट? सो क्रिएशन जी। तो वही है। सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम जी। वुमेन, एंड यू हैव ब्यूटिफुली डिस्क्राइब दैट. Now, building that Rang Sari movement, this leads to me that third question. Rang Sari, I'm sure it's not just about clothing or wearing saris, it's about जी। confidence. How did you begin creating this community, and what does this platform mean for the women who are part of it? As I told you that this actually meant for, bringing appreciation to one and all. So Yeah, that appreciation part was the beginning of Rangsari. And then slowly we gathered, a lot of ladies who just wanted to be there. They, so many ladies are silent, but they are, building that feel, self belief in them. So ये बहुत important है. We've got true. ladies over age 60 and 65, 70s. एंड दिस जैसे मैंने उनको जैसे काफी एक एज में उन्होंने बताया कि आई वाज विडोड इन अ वेरी यंग एज। तो उसके बाद व्हेन शी केम टू द ग्रुप उन्होंने एक अपनी पिक्चर डाली एंड एवरीवन वाज इन अप्रिसिएशन विद हर कि अरे वाह कितनी सुंदर लग रही हैं आप तो, मतलब उन्होंने रेड साड़ी पहनी। बहुत एक छोटी सी बात, वी आर रियली कलोकियल, हम बहुत ज्यादा फॉर्मल इस ग्रुप को हमने नहीं बनाया हुआ। आप तो मन में आए, वो एजेड सी लेडी है 65, उन्होंने रेड साड़ी पहनी हुई थी, तो उनको कहा कि अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी। And she said, she called me personally. She said, निधि मेरे ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी यंग हो गई हूँ। ऐसा कॉम्प्लीमेंट में तो मुझे अपनी यूथ में भी नहीं मिला जो आज मुझे मिला। एंड शी सेड, मुझे अगले दिन कॉल करके बोला, आई स्माइल ऑल ओवर माय फेस द होल डे। मतलब वही कॉम्प्लीमेंट से मेरा पूरा दिन बन गया। सो दैट इज वेरी फेल्ट कि women नीड एक सेल्फ बिलीफ जो है, हम ये वाली फीलिंग जागृत कर सकते हैं। एक सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी जर्नी में जाते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो जो चीज है उसको किस तरह से हमें रिमूव करना है, किस तरह से अपने अंदर एक मतलब खासियत अपनी बिल्ड करनी है। और मैं समझती हूँ जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या कोई भी लेडी है, ऐसी कोई संसार में नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो जिससे वो अपनी जीविका मतलब कर सके, वो आगे बढ़ सके, कुछ भी कर सके। आप घर में भी देखें, लेडीज लड्डू बनाती हैं, पापड़ मंगौड़ी बनाती हैं, वो भी एक टैलेंट है। आप और मैं शायद True, ये नहीं बना सकते हैं, true. लेकिन वो बना सकती है, और इतना बढ़िया बना सकती है कि शी कैन सेल इट आउट। तो मतलब वो उनके अंदर निकालना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा फुल ऑफ एनर्जी रहती हूँ, मुझे भी कोई बार लगता है कि कोई मुझे भी आके बोले, निधि यार खड़े हो, चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो एक मोटिवेशन, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड एक और, आई स्पीक अ लॉट मे बी। तो जैसे एक होता है कि आपको आपके फैमिली में कितने ही लोग हों, कितने बेस्ट फ्रेंड्स हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको जो फर्स्ट चांस देना होगा, इनिशिएट करना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हो या आप ये सोचो कि मैं कैसे कुछ नया कर सकती हूँ, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकती हूँ, कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। जब शुरू हो जाएगा तब पीपल माइट ज्वाइन इन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दे बिलीव इन दैट, इन योर एफर्ट्स, योर एंडिबल्स। और वो फर्स्ट स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। एंड मैं ये समझती हूँ, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो क्या हो गया, गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस। We all deserve, not second only, third, fourth, fifth, sixth, we deserve all these chances. And why not? और ये चांस हमें अपने आप को खुद को देना है। नोबडी इज गोइंग टू के आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होगी तो बोली अच्छा एक बार कर लिया, दो बार, बोले कितनी बार बोलेंगे, फिनिश। उसके बाद उसको भी लगे मेरे को क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो आपको अपने अंदर एक बिल्कुल बिंदास होके आपको करना है कि जो होगा देखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और यही जो जज्बा है ये सबके अंदर होना चाहिए, सब लेडीज के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से। And I'm sure the ladies who are watching, and even men, बच्चे भी अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, so they know कि their mothers, their wife, their sisters, they have these capabilities. Everybody, every individual has that capability. It's all about igniting it. It's all about Ignite. igniting it. So we'll share the details of Urja ji and her group and everything at the later down in the podcast. You wait जी। till the end. And but this leads to me, Urja ji, to the
fourth question of mine, because you've empowered over 320 plus women with financial awareness. जी। Why do you think financial literacy is the first step towards true empowerment for homemakers? सी एज अ होम मेकर एंड एज मतलब आप कितने भी एफ्लुएंट हाउस होल्ड में हैं, कितना ही सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक फिनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम में से बहुत लोग हैं जो बैंक जाने से सोचते हैं कि अरे बैंक जाएंगे पता नहीं क्या हुआ है। बिल्कुल मुझे भी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे हुआ नहीं है। और लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और सिर्फ इसलिए अपने लिए भी चाहिए हमें कि हम कुछ मतलब हम अगर फाइनेंशियली साउंड हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक स्टैंडिंग है दिमाग में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरा पैसा है, इसको मैं जैसा चाहूँ यूज कर सकती हूँ, इसको बिजनेस में आगे बढ़ा सकती हूँ, अपनी True. फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ। तो ये जो चीज है आजकल बहुत जरूरी है कि हम लेडीज में, स्पेशली लेडीज की मैं बात करूंगी, मेन हैव नो ऑप्शन, दे हैव टू अर्न, ठीक है ना, पर लेडीज के लिए जो है अगर वो कुछ कर लेती हैं तो उनकी एक ऑरा, उनका एक जो पर्सनालिटी है उसमें भी True. डेवलपमेंट आता है। वो एक समाज को भी एक नए नजरिए से देख पाती हैं। अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है इट पासिस ऑन टू देयर चिल्ड्रन। एंड वो भी जब समझे अगर माय मदर कैन डू एट दिस एज, व्हाई नॉट मी। हमारे अंदर भी तो मतलब हम आज जेंजी हैं, तो हमारे अंदर तो और भी बहुत सारी एबिलिटीज जो हमारे मदर्स में नहीं है, और जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जब एक माँ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चों में तो डेफिनेटली इट मैनिफेस्ट्स इन देयर पर्सनालिटी। And I'm sure the literacy, financial literacy, which you are giving to the souls out there, to the all the homemakers who always wanted to do something, and because of you, they're able to do that thing. They are able to express themselves. That's more important, because as an entrepreneur, you get that courage to express yourself when you are into writing, when you're into expressing yourself. It's not about making a business. It's all about uh, looking at you, like the transformation which you are into right now. It gives that basically. Uh, Absolutely. so, so it's the overall transformation. But this leads to me. Like it's not. I'm sure it's difficult. It's not easy. Every day is a new challenge. So your YouTube channel, Let Urja Talk, is a beautiful blend of story, heart, and soul. How did content creation play a role in expressing your voice and building a community that listens? I have this very interesting story about how Let Urja Talk started. So during COVID, it was delivered, I must say. And then I was thinking like those were the days when the doctors were like highly pressurized, and they were like cornered, and इतना काम था उनके पास कि जिंदगी जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता। Correct. So I just thought of a thing. Let's talk to doctors. What is that one thing that keeps him alive and kicking? So I spoke to a doctor friend of mine, and he said, "निधि, मैं अभी भी आईसीयू में हूँ, बाहर बैठा हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिला है और इतने में तुम्हारा कॉल आ गया, आई एम रिसीविंग दैट।" तो मैंने कहा क्यों ना एक टॉक शो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एंड वेदर यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, आई डोंट केयर, what is your nickname? And he said, my nickname is Raju. I said, I'll refer to you as Raju. And you're Wow. not so and so doctor from so and so hospital. And you are doctor for the next 45 minutes. And he's a writer, he's a stand-up comedian. He said, Nidhi, I could never have done this. क्योंकि डॉक्टर्स का हमारा अपना एक स्टैचर होता है, हमारी एक पोजीशन होती है, और एक समाज के सामने एक चेहरा होता है। तो उनके सामने अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे ये डॉक्टर है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये तो जोकर है। तो मेरी उस पर्सनालिटी के साथ ये जो चीजें मैच नहीं करती, बट आई लव डूइंग इट। एंड ही वाज देयर ऑनलाइन एंड आई रेफर टू हिम एज राजू ऑल द टाइम, एंड ही फेल्ट सो गुड कि बोले इतने सालों के बाद बचपन का नाम मेरे सामने आ गया। उनके बचपन के हमने उन्होंने कुछ किस्से सुनाए और स्टैंड अप कॉमेडी करके हमें हमें दिखाए, हमें करके दिखाई। तो वो बोले दिस 45 मिनट्स आई हैव एक्चुअली लिव्ड, ये कोविड के दौरान हुआ। एंड ही वाज एक्चुअली ड्यूरिंग दैट शो, ही वाज वेयरिंग दैट डॉक्टर्स का जो उनका वो होता है गार्ब, उन्होंने पहना हुआ था ग्रीन कलर का।
और वो कैप लगाई हुई थी, स्टेथोस्कोप उनके हाथ में था, एंड ही वाज देयर. बोले, निधि, इफ आई गेट अ कॉल, आई हैव टू लीव द शो एंड गो. आई सेड दैट्स परफेक्टली ऑलराइट. And we had so many doctors. उन्होंने कहा कि there was one doctor who plays a guitar, who sings. He actually set up a temporary studio, for the show. I mean, they were so happy with it कि किसी ने तो सोचा कि हम इंसान हैं. And then we had this one doctor who actually danced on the show. Okay, and she's an Wow. excellent dancer, singer, and everything, and she danced on the show. So this is how we started with Let Urja Talk. And till date, then I started a show for women empowerment and all of those, enlightening the women of today. So I had call from men coming in, and they said, Nidhi, everyone is talking about women empowerment. Who will empower men? We also need some motivation. We also need to be there. हमें भी मन करता है कि हम अपनी कहानी सुनाएं. So मतलब, I mean, things started popping up. And then when I started with Rang Sari, so I started a Rang Sari talk show for brand promotion, success stories, and everything. And touchwood, it has gone down really well with all the females of our group and Sakhis of our group, I would rather say. And till date, we've already done probably 30 shows on Rang Sari in 2 years. Wow. So I think that's a pretty good number. Wow. It's an achievement, I would say, Urja ji, which you are achieving, but not showcasing it to anyone, because giving a happiness feeling to any other soul. Uh, I understand that feeling, how you are running it, what energizes you more, because you see that happiness on other people, and people who are listening as well. This is what life is. You must be into your jobs, you must be into your professions, respective professions, but you have got certain skills, certain talents which you want to showcase as well, right? To yourself, not to anyone, to express those talents. So Right. this is where people like Urja ji, they're there. It's not about women empowerment, it's about social empowerment, I would say. Social empowerment. Absolutely. So thank you so much, Nidhi ji, for answering all the questions so honestly and so candidly. You're an authentic soul we have met, and I'm sure the audience who are watching or listening, they would mention Urja in the comments right now. Okay, Yeah. so we'll wrap up the first section and we'll move on to the second section. Urja ji, this is a rapid fire round to lighten up the things. Things are already lightened up in your energy any which way, but sometimes these podcasts when I record, it goes on an emotional trajectory because people are Mm. sharing their journeys, so they get Mm. emotional many a Mm. times, and even I get emotional. So this is the reason why we keep this fun element as a second round of rapid fire. So I'll ask you certain questions rapid fire. You can give an answer in one word or one line, in whatever best way you can. Right. Yeah. Get ready. I should get started now. Yes. Yeah. Mm. Let's try and make it rapid, even if it Okay. doesn't. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So crossing my fingers. Mm. First sari color you ever wore and which you remember as well. That was a beige color sari, which I wore for my farewell. Beige color sari with a red border and a green outline. Yeah. Wow. Wow. One word that describes your journey till date. It is actually Urja all the way. Urja is the right word. That's what we are referring as well. Yeah. YouTube or Rang Sari, which came first? YouTube. So, guys, you go to YouTube as well. You can create your free account, start sharing your journeys. One women entrepreneur you admire. Uh, Women entrepreneur I would admire. I think that's Dolly Jain because she also came from a very domesticated household, and now she's doing wonders. I mean, she's a global name, and she is kind of an inspiration to me as well. And sometimes I look up to her for inspiration, and I want to be there. So, Dolly ji, uh, people like Urja ji are already on the path. Yeah. Just check the light out here.
A quote that defines your life right now. A quote that defines your name. Okay, I would like to recite this. Uh, जब हौसले हो चट्टानों से तो क्या बात। कह दो बुलंदियों से अपना रुतबा थोड़ा और मजबूत करें. अरे क्या बात है रुतबा, हौसला, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मुझे इंस्पायर कर रही हैं, ऐसा लग रहा है, राइट? So thank you so much, Urja ji. Best compliment you have received from your community. Best compliment. Yeah, your community is Um, watching and listening this. yeah. There have been so many compliments, but yes, there is one thing which really touched my heart. And she said, there's this lady. She said, like when I see you, there is a feeling that I want to be like you. And I Wow. treat myself as a lesser mortal. So I then go into introspection and retrospection. What have I done to inspire anyone? So when someone said something like this, that I want to be like you, I want to be at your stage, I want to be where you are right now. So Wow. that really touched my heart and gives me inspiration to move ahead in the right direction. And I am thankful to that lady because not many people express this, but they Yeah. always want to be at that place, right? so Yeah. so I'm thankful. People like that lady is also needs to be thanked for. So Thankful, Urja ji, absolutely. you have got that energy. Best compliment you have already answered. If you had a superpower, what Hmm. would it would be? If I had a superpower, hmm, are you talking about just one superpower, or I can One, take many chances? only one. If I had a superpower, I would, would want to change a lot of things. This patriarchal mindset, especially, I would want to change, and giving more opportunities to women. And this is all, interlinked. So this is one superpower I'm exercising. So, and give more opportunities, unbiased society, and that would be something, it would give wings to women, and Yeah. they would fly anywhere they want to and do everything that they wanted to do. And now they are a free bird and have more opportunities, and then can just look forward to life. And that's what you're here for. You're giving that light, you're providing that light because you've already enlightened that light in the name of Urja. So, audience, just mention Urja again in the comments. A skill you are still learning. I am technically, challenged. So this is something I'm learning. I'm learning AI and so many more things that I cannot do on my own. I have to rely on external agencies. So if anything that I can learn, and I think Avinashi, that is something I can learn from you as well. So, so this is something I want to learn actually. Uh, it's something I am humbled, whatever you are saying right now, because I'm learning a lot right now while I'm asking these questions. It's like learning for me. So, I one guess it's always message, mutual. Learning is always mutual. yeah, learning is always mutual. And this is the reason this question is for all the housewives who are listening right now, who are looking at us. One message you want to give every housewife out there. Just believe in yourself. And as I told you earlier as well, that just believe in yourself and you can do it. Just look into the mirror and say, I can do it and I will do it. And that is where it is going to give you wing. That is where you can start living for your own. And make sure how much ever busy you are, do that one thing that gives you that enlightenment within. Do that one thing जो आपको एक सुकून देता है, जो आपके होने का आपको एहसास कराता है. The day I write poetry first thing in the morning, I feel I'm complete now. I feel I have done something which makes me feel happy. I am in that happy space now, and I can do everything in the world. वो पहली चीज जरूर करे उठने के बाद, चाहे आप 2 पन्ने पेपर के पढ़े, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, चाहे भगवान का नाम लिखने में आपको अच्छा लगता है वो लिख रहे हैं, कुछ भी करते हैं, कोई गाना आपको सुनने में अच्छा लगता है, भजन सुनने में, वो सुने, वो करें, क्योंकि दैट इज दैट वन थिंग which will set the mood of the day.
आप सुबह उठ के गुस्सा हो रहे हैं, फ्राउन हो रहे हैं, आपका दिन पूरा खराब है। आप कुछ एक ऐसा काम करें जिससे आपके मन को अच्छा लगता है, जिसके आपके मन को पुलकित करता है, वो जरूर है करना, और वो जरूर करें, चाहे वो कुछ भी हो। और आप देखिए, आप पूरे संसार को जीत सकती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। So I'm sure the message is loud and Loud and clear. clear that believe in yourself and do one thing which inspires you on a daily basis. Absolutely, So absolutely. that's what will give you peace. One goal you have set for yourself this year, Urja ji. Yeah, I'm goal I've set for myself is get more and more sakhis into our kunba, and और इसको और भी ज्यादा हम अवेयरनेस लेकर आए। बाय वर्ड ऑफ माउथ इज गुड, एंड इससे बेटर कुछ नहीं होता। अगर लोग आपके लिए कन्वेंसिंग करते हैं, लोग आपके लिए मतलब लोगों की वॉइस जो है वो मतलब दूर दूर तक जाती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। और बहुत बढ़िया एक बात, मैं आपने कॉम्प्लीमेंट की बात कही थी कि एक बार मैं कहीं गई हुई थी किसी इवेंट में, तो एक लेडी आई मेरे पास, बोले आप वही हैं जिन्होंने एसपीएल, हमने एक बहुत बड़ा एक शो किया था साड़ी प्रीमियर लीग करके, विच वाज टॉक ऑफ द टाउन, आप जिसको बोल देते हैं इवेंट। Yeah. तो और उस बात को 1.25 साल हो चुका है, एंड फिर भी उस लेडी ने आकर के आप वही हैं जिन्होंने एसपीएल किया था, एंड बोले मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बताया है। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना Correct. कहीं आपने किसी मतलब किसी एक दिल में तो छाप छोड़ी है आपने। तो वो जो चीज है, मैं मतलब वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा वो चीज। और बस चलते चलते यही कहूंगी कि आप बस अपना कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, साफ दिल से कीजिए। और जब साफ दिल से आप अपनी बात कहते हैं, करते हैं, जिसमें छलावा नहीं है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, तो वो दिलों तक पहुंचती है बात। आपको कुछ यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, एंड ट्राई टू एक भूमिका बांध के आप कुछ बात कह रहे हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो अगर दिल में है वो जुबान पर भी है, और आप कह देते हैं, लोग बिल्कुल एक हार्ट टू हार्ट वो एक मतलब एक वाइब्रेशन पहुंचती है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि ये होता है। और लोग आपसे इसी आपके सिंप्लिसिटी जहाँ जितनी रहती है, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। और मेरा मेन मकसद यही रहा है कि इसको मैं आगे इस तरह से लेके चलूं। और स्टूडियो मेरा एक है गोल, जो करंट मेरा गोल है, आई एम ओपनिंग अ साड़ी स्टूडियो वेरी सून। Wow. तो वो है। और बहुत सारे लोगों को और मैं जोड़ना चाहूंगी इससे, इस कल्ट से। आर्टिसंस एंड व्यूअर्स को हम जोड़ना चाहेंगे धीरे धीरे, जिससे कि उनकी जो जो भी डाइंग कला जो है, जो लुप्त होती जा रही है, साड़ियाँ जो है। और एक कल हम एक टॉक शो में बात कर रहे थे कि अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, इसका दायित्व किस पर जाता है? इसका दायित्व हम लेडीज पर जाता है। अगर हम साड़ी पहनकर अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे कि ये हमारा कल्चर है, ये रिच कल्चर है इंडिया का, तो वो कभी भी नहीं पहनेंगे। और जब तक हम उनके लिए एक रोल मॉडल नहीं हो, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर हम लेडीज नहीं पहनेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन कभी भी फॉलो नहीं करेगी। तो ये एक मेन मकसद ये है कि आने वाली जनरेशन के अंदर साड़ीज और बहुत कुछ ऐसा है जो हम चाहेंगे कि जो इंडियन कल्चर में है, वो उनको लेकर एक धरोहर के समान उनको दें, और लेगेसी मतलब मूव ऑन करती रहे हमारी। क्या बात है. और निधि जी, आई एम श्योर, ऊर्जा जी, दिस इज द गोल विच यू हैव मेड एंड यू गोना अचीव इट. People who are listening, they're gonna join you because the movement which you are running, it's a mission, I would say, for your life. And Absolutely. जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, it's like a legacy which you are creating, not for yourself, it's for the society, the heritage, the culture which is passed on through generations, and you're taking it forward. I'm sure many would relate to. So audience, if you are watching this right now, just mention India, in the India and sari, in the comments below, and let's see how many will reach out to you directly through your comments, if you want to be part of your journeys. And if you Sure. don't have that self expression as well, people don't express it, right, in front of many people. I know this rapid fire is taking long, but we're gonna wrap it soon. But we're gonna complete it. Why? Because this is an important thing. The sari love is not about only wearing a sari. It's an ethnicity which you are showcasing. Okay. It's not about
a custom or a ritual. It's a tradition, I would say, which has been passed on to us, and this is what we're passing it to the other generations. So a beautiful thing which you are doing. This leads to me to my uh, second last question of the rapid fire round. What brings you peace, Urja ji? You're such a peaceful soul. Writing, writing, brings peace to my mind, peace to my soul. Expressing. So, guys, express yourself in whatever way you can. It doesn't have to be on like in front of anyone. Like Urja ji mentioned, it can be in front of a mirror as well. कांच के सामने जाइए और बोलिए. Last बिंदास question. जी Last question, which is an addition from my side to this rapid fire. A tough question for you, Urja ji. okay. Sari or salwar? What would you prefer? Sorry, anytime, anytime. So I know this was an obvious answer, but I just wanted to reiterate that fact that sari is a beautiful experience. Whosoever wears that, I know people get bored as well. Sometimes housewives get bored as well, but it's a pure love which you'll feel once you connect with why exactly sari is worn for. That is important. All right, so this brings to the end of second round, Urja ji. Thank you so much for answering all the questions I again. actually forgot. I actually forgot it's a rapid fire. I mean, with me, it was like I had to say whatever I had to say. All right, welcome back to section 3 of Trust Your Journey 1.0. We have Urja ji with us again. Welcome back, Urja ji. The question which I have, which leads to me this question, why? Because there is a push and the pause always happens in me as well, right? Was there ever a moment when you felt like giving up? What made you I pause? think What made you it pause? And was what helped you push through? okay. It was a pause actually. My daughter got engaged to be married, and then I had to take a hiatus of 3.5 months. So when I came back to my kunba and everyone knew about it, so that 3.5 months, a lot of Sakhis left the group, and because I was not actively engaged, and then obviously मतलब जब engagement नहीं होता है, कुछ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ बहुत दिनों तक कोई interaction भी नहीं हुआ किसी के साथ, तो people felt a little bored, I guess, कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, let's leave it. तो that happened, and it was actually a setback also कि अरे इतने लोग जा रहे हैं और अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कुछ करने के लिए. तो जब मैंने दोबारा रिज्यूम किया, अपना इंटरेक्शन शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे एंगेज किया जाए, किस तरह से लोगों को बांध के रखा जाए, जोड़ के रखा जाए. पर धीरे धीरे जब सबको मालूम पड़ा भाई बिटिया की शादी थी, ऑब्वियसली मतलब उस समय नहीं मिल पाया होगा, तो बट वो बने रहे, बोले नहीं निधि कोई बात नहीं, हम अपने आप में मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, तो सब आइडियाज देते हैं, एंड वी आर ओपन टू आइडियाज कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं कि निधि दिस वुड बी अ गुड आइडिया, वी कैन हमारे ग्रुप में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. तो मतलब इट्स एन ओपन फोरम, आप अपनी थॉट्स रखिए, बीच में रखिए, एंड यू पिक अप थॉट्स, एंड आप तो क्या होता है कि आपके अंदर खुद लगता है कि हाँ अभी लोग जुड़ना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, इतने टाइम अरसे के बाद भी अगर नहीं छोड़ के गए, इसका मतलब उनको यहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है शायद, या कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है उनको. तो बस वो एक पॉज जरूर आया था 3.5 महीने का, बट देन वी पिक्ड अप फाइन, एंड फिर वैसे के वैसे चलने लग गया सब कुछ. And this is a true example of perseverance because that pause was not to pause the business idea or the entrepreneurial journey of yours. It was an upgradation of what you were going through in your journey. जी And जी. thank you so much, Urja ji, for answering this. But this leads to me to another question, which we often talk about success, but let's talk about struggles as well. What role did your family or surroundings play in your growth? Was there resistance or support? Because without support, like it's we are alone then, right? In this Absolutely. journey. हाँ. Without support, let you start on a journey. You're so unsure about yourself, about how things are going to shape up. Yeah. So I have complete support of my family, my daughter especially. They have been मेरे करण अर्जुन जो हैं,
वो Yeah. मेरे करण अर्जुन है अगर मैं बोलूँ तो। एंड दे वर ऑलवेज लाइक, हाँ मम्मी करो, लेट्स, हम लोग साथ में हैं। तो जिसका जो फोर्टे है उसने उसकी तरह से सपोर्ट किया मुझे, और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एंड वी डन इवेंट्स लाइक एसपीएल एंड उत्सव रंग साड़ी फॉर मोर देन 150 women। एंड ट्रस्ट मी, Wow. एक टीम में अगर मैं बोलूं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, मतलब दोनों, तो मतलब हमारे इशारों में काम होते थे। मैंने इशारा किया यहाँ से, उसको मालूम मम्मी ये कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है, और ये होगा ये होगा। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है मेरा इतना सॉलिड है कि बहुत जबरदस्त। एंड माय हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन, मतलब इस लाइक ठीक है जो आप कर रहे हो आप करो, कहीं अटक जाते हो, कहीं कुछ परेशानी आते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो Wow. मतलब ये जो चीज है मुझे मालूम है, अरे गिर भी गई तो है उठाने के लिए लोग। तो इसलिए मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि आगे बढ़ो, बिंदास बढ़ो, बेफिक्रे बढ़ो, और देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू। एंड कई बार मैं डाउन भी होती है, अरे कैसे होगा, किस तरह होगा, बोले मैं हूं ना, हम हैं तो सही, क्या करना है तुम्हें, हम हैं, हो जाएगा। नहीं होगा तो कम हो जाएगा थोड़ा, और क्या होगा, बट हम मतलब तुम्हें रुकने या गिरने नहीं देंगे कभी भी। तो ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त एक सपोर्ट रही, और मतलब दिस केप्ट मी गोइंग, या टोटली। I'm sure this the internal support which you're getting from your family. We're talking about that, but the third question which I have, it's the support which you're getting from your community. You have helped over 320 women became entrepreneurs. What's one story from your community that deeply touched your heart and made you say, "This is why I do what I do"? Okay, a small correction here I would like to make. Uh, um, I am not an entrepreneur as of agar, to talk about कि I'm not an entrepreneur myself. I have always played the role of, जैसे एक बहुत खूबसूरत सी माला होती है, उसमें Yeah. हीरे भी लगे होते हैं, मोती भी जड़े होते हैं, और नहीं, हीरे जड़े होते हैं, मोती भी लगे होते हैं, और कुंदन भी होता है, और कहीं ना कहीं अलग अलग वो जुड़े होते हैं। मैंने सिर्फ वो धागे का काम किया है, कि मैंने उन हर रोज एक धागे में नए नए मोती, नए नए हीरे जड़ती हूँ, और ये मैंने काम किया है। वी ऑलरेडी हैड women entrepreneurs who were doing good, or who were trying, who were struggling maybe, but I tried to give them a platform to express। जैसे रंग साड़ी हाट हमारे एक और है, हमारा सेक्शन है, उसमें आप प्रमोशन कीजिए, और भर भर के प्रमोशन कीजिए। अगर उस प्रमोशन से, उस ग्रुप से अगर आपको कोई भी Yeah. बिजनेस मिलता है, थोड़ा बहुत सा भी, तो मैं ये सोच रही हूँ बहुत हमारे लिए एक मतलब इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। एंड वन ऑफ दिस टॉक शोज आई वाज होस्टिंग द अदर डे, तो उसमें एक लेडी है, शी इज इनटू डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्म का करती है कुछ काम। तो उसका उनका वो देखकर मतलब उसको उनको ऑर्डर मिल रहा है। तो मतलब मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा है अगर किसी को ऑर्डर मिल रहा है ऐसे करके। Yeah. और कल भी हमने एक टॉक शो किया, तो उसमें देवर लेडीज वो मेकिंग डिफरेंट, वो अपनी यूएसपी बता रही है कि हमने किस तरह से किया है, कैसे किया है, और वहीं से ही उनको ऑर्डर आ के, प्लीज कनेक्ट टू मी, आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर यू। तो अगर ऐसे ही चलते शो में या किसी से बात करके, एक्सप्रेस करके, अगर हमारे रंग साड़ी के थ्रू किसी को भी बिजनेस मिल रहा है, तो वो बिल्कुल मेरी मेरी बहुत बड़ी जीत है। Wow, and not many people are like you, Urja ji, who are giving this opportunity to all the people of the community, who all the members of the community. Congratulations, you've got a leader who is leading that group, and you are all leaders too. But it's all about the transformation which Urja ji you have went through. Looking back at the Uja who was just starting to writing online, expressing herself in diaries, what's changed the most inside you? What have you learned as a woman, creator, and a leader right now, who is sitting right now? Yeah. So when I started writing, it was just for my daughter's poetry and school stuff and everything. तो मैंने स्टार्टेड राइटिंग, और उसके बाद मुझे लगा कि धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और फिर मुझे लगा कि मैं जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दिमाग में, दिल में और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो आप में भी ओपनली आप नहीं कह सकते हो, लेकिन आप लिखना शुरू करते हो, वो चीजें आप लिखना शुरू करते हो, तो आपके अंदर भी बहुत सारी क्लैरिटी आती है। आपके वो जो थॉट्स हैं, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव, एनीथिंग दैट कैन बी, तो उसमें आपकी क्लैरिटी आती है। सो इट हेल्प्स यू इवॉल्व एज अ पर्सन, इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन।
और आप यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग कि अगर मैं उस सिचुएशन होती तो मेरा क्या रिएक्शन होता, या मेरा क्या उस समय मैं किस तरह से मैं उसको उस चीज को हैंडल करती या क्या करती। सो राइटिंग हैज डेफिनेटली हेल्प मी ग्रो एंड अपने थॉट्स को थोड़ा और इवॉल्व करने का मतलब एक जरिया बना है। और एक्सप्रेस तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई लव रिसाइटिंग, बट इट हैज हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन डेफिनेटली। And I'm sure the transformation which you went through, you would be providing that to the other women who are listening right now. Maybe a housewife, maybe scared, maybe unsure. What would you say to her right now? To her heart right now, I would say. Okay, first, I think how I started was when I was on the crossroads. I didn't know what to do with my life. Am I capable of doing anything? या मेरे अंदर कोई ऐसी capability है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? तो I like a child, I actually took a piece of paper and एक कॉलम बनाया, दो कॉलम बनाए मैंने, जिसमें वीकनेस एंड स्ट्रेंथ लिखी मैंने, और उसमें लिखा मेरी वीकनेस क्या है, that I'm impulsive। ठीक है, मुझे हर काम यूं चाहिए, अभी करना है तो अभी करना है बिल्कुल। और फिर स्ट्रेंथ क्या है कि मैं लिख सकती हूँ, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैंने ये भी लिखा कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है या मुझे कुकिंग अच्छी आती है, मतलब मैंने वो सारी लिखी। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि जो स्ट्रेंथ वाला है वो मैं ढूंढ ढूंढ के लिख रही हूँ, पर मैं लिख रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जिस दिन आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जो आपने लिखी है, आप उसको पॉलिश करना स्टार्ट करते हैं, उस चीज को अपने अंदर एक मतलब वही ऊर्जा की तरह आप उसको अपना लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। एंड ट्राई करने से, इनिशिएट करने से झिझकिए मत, क्योंकि आप झिझकेंगे तो कोई आपको नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं आपके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मैं अगर 24 घंटे घर का काम कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, किसी को ये नहीं फर्क पड़ेगा कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा नाम हो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वजूद की पहचान हो, इससे किसी बात को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं मुझे 1 घंटा रुक के मुझे अपने लिए वो काम करना है जिसमें मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, मैं पहले अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखूं। क्योंकि हम लेडीज में, स्पेशली हाउस वाइफ में, ये है कि फैमिली के लिए सब करेंगे, बच्चों के लिए सब करेंगे, परिवार के लिए बिल्कुल कीजिए, ये बिल्कुल करना भी चाहिए, करना बनता है, लेकिन अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दो। हम कहीं ना कहीं इन सब के बीच में अपनी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। आज आप लेडीज से पूछे कि आपको खाने में क्या पसंद है, वो 2 मिनट सोचे कि मुझे क्या पसंद है। अरे आपको यही नहीं पता आपको खाने में क्या पसंद है? तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वैल्यू ही नहीं कर रही, और जब आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे तो संसार में कौन वैल्यू करेगा आपको? कोई नहीं करने वाला। तो पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखो, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझो और एक्सप्रेस करो। आप नहीं एक्सप्रेस करोगे, किसी को सुनाई नहीं देगा कि आप कितने ही दिल में आपके अरमान हो, किसी को नहीं दिखाई देंगे। आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ मैं, मतलब अब आपने ऐसे एक दुखती रग पे हाथ रखा है बहुत लेडीज का, तो आज तो बोलना बनेगा ही बनेगा। जब कोविड का टाइम आया, कोई सर्वेंट्स नहीं थे, कोई हाउस हेल्प नहीं था, कुछ नहीं था, एंड यू हैड टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। एंड आदमी कितना काम कर सकता है, मतलब क्योंकि घर वालों को, जनरली जेंट्स को हमारे कितना काम करना आता है। कोविड के बाद बहुत लोगों ने ये स्किल्स सीखी, क्योंकि दीज आर लाइफ सेविंग स्किल्स जो आनी चाहिए कि घर का काम भी करें। तो इतना काम करते थे कि कई बार बाल बनाए हैं नहीं बनाए हैं, वही गंदी सी जीन्स, वो लोअर्स और टी शर्ट पहन के काम करे जा रहे सारे में। तो मैंने अपने आप को एक दिन शीशे में देखा, तो आई फाउंड अ फेस विच वॉज टायर्ड, which was disgusted, which was frustrated, no smile, the hair was unkempt. I said, "This is not the person I am. I'm not. जो मुझे दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी." So then I went, and the next day I had to change this perspective of myself to myself, किसी और के लिए नहीं। मैं जब नहा धोकर आई, मैंने प्रॉपर मेकअप किया, बाल बनाए, अच्छे से कपड़े पहने, और मैंने एक सेल्फी ली, और मैंने वो सेल्फी डाली अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो बहुत लेडीज का, बहुत फ्रेंड्स का फोन आया, निधि तुम्हें इतना टाइम मिल गया कि तुम मेकअप कर रही हो और हेयर बना रही हो? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा मैं जिस भी शीशे में अब अपने आप को देखूं, मुझे एक ऐसा चेहरा नजर आना चाहिए जो खुश हो, जो ऐसा चेहरा नजर Wow. आना चाहिए जो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता हो। एंड बिलीव मी, सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिड द सेम थिंग। दे क्लिक पिक्चर्स एंड सेड, निधि दिस इज एक्चुअली गुड, दिस इज फॉर सेल्फ encouragement.
कि करना तो काम है ही, मुंह बना के करो या खुश होके करो। तो एटलीस्ट जिस भी शीशे में अपने आप को देखो, देख के तो तबीयत खुश होगी, यार ये है बंदी, ये है वो लड़की, ऐसा बनना चाहिए। सो दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। और लेडीज, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ दैट इम्पोर्टेंस। एंड जब आप दोगे तो घर वाले अपने आप आपको देने लग जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। क्या बात है। और द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, एंड हाँ जी। इट्स नॉट फॉर द लेडीज, इवन मेंस। प्लीज इवन ये मैन वीडियो, एक्चुअली। ये वीडियो है ना, वापस से रिपीट करिए अगर मैसेज आपको वापस से सुनना है। वो जो शब्द, इंस्पायरिंग शब्द है निधि जी के, वो आपको वापस से सुनने, तो वापस से रीप्ले बटन दबाइए, वापस से बैक जाइए और वापस से करिए, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। बार बार इसको सुनिए। अगर ये जज्बा आपके अंदर नहीं जाग रहा है तो ये सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स ही आपको इग्नाइट करेंगे। थैंक यू सो मच निधि जी फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग जी। अहेड, व्हाट्स योर मिशन विद योर वर्क? आई नो यू हैव गॉट गोल्स कि आपकी सखी या और ऐड हो, आपके जो भी आपके कम्युनिटी आपने बनाई है, आप क्या बोल रहे थे उसको, एम से कुछ आप उसको बोलते हैं? कुनबा। 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 हम सो कम्युनिटी को कुनबा, कुनबा बोलते हैं। हाँ जी। सो हाँ जी। कुनबा के अंदर आपकी और सखियां ऐड हो, बट लुकिंग अहेड, व्हाट्स योर मिशन विद योर वर्क? एंड इफ आवर लिसनर्स आर फीलिंग स्टक, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू? ओके, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टा हैंडल, माय फेसबुक पर भी मैं हम लोग अवेलेबल हैं। और किसी को भी अगर कनेक्ट करना है, इंस्टा पे है, फेसबुक, यूट्यूब पर भी है, एंड लिंक्डइन पर भी हमारा अकाउंट है। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन रंग साड़ी और ऊर्जा निधि, विच एवर यू प्रेफर। एंड मिशन जो है, ऑफ कोर्स साड़ी को हम एक ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और इंडिया में जैसे कह रहे कि लुप्त हो रहा है, बट इंडिया में तो खैर जागरूक करना ही करना है। इसको हम ग्लोबल लेवल तक ले जाते हैं। इंडियन आर्ट और कल्चर जो है वो इतना रिच है कि आप ये देखिए, हर 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में आप देखिए कुछ नया ही है। कुछ नहीं, हमारे इतने स्टेट्स हैं, सबका पहनावा अलग है, सबकी बोली अलग है, सबका खाना खान पान अलग है, सबका हैंडीक्राफ्ट, उनका जो आर्ट है वो अलग है। तो क्यों ना हम इसको एक ग्लोबल स्टैचर दे दें इसको, हम इसको जगह जगह तक पहुंचाएं कि ये देखिए ये इंडियन कल्चर है और इतना रिच है जो आप। और ये सब हमारा मतलब एक पुश्तैनी है जो हमें धीरे धीरे मिल रहा है। हम कहीं ना कहीं उसको अगर धरोहर की तरह रखें और इसको लेकर चले आगे, तो आई थिंक, आई मीन, आवर आर्टिसंस, आवर वीवर्स कैन डू वंडर्स। एंड आजकल तो इंटरनेट का और सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बोलबाला है कि आप अगर एक छोटे से गांव में भी हैं, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरनेट चलाना आता है, कुछ आता है, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और अगर हम रंग साड़ी में रहकर अगर ऐसा कुछ भी कर सके कि किसी भी एक आर्टिस्ट को हम प्रमोट कर पाए, या उनके कल्चर मतलब उनके जो मतलब आर्ट है उसको हम आगे तक ले जाएं, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी एक शान की बात होगी कि हम अपने इंडियन कल्चर को कहाँ से कहाँ ले जाएं। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे जुड़ सके कर सके, तो क्यों ना हम एक एकजुट होकर इस मुहिम को आगे ले चलें। एंड आई एम श्योर बहुत लोग जितने भी ये सुन रहे हैं, इस चीज़ को, लिंक और सारी चीज़ें ऊर्जा जी के सोशल मीडिया हैंडल्स, उनसे कैसे टच बेस कर सकते हैं, विल बी गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट्स के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। बट द पॉइंट, the mission which you are on to take it at the global scale, Urja ji, we are also there with you now since we are recording this podcast. I'll also introduce you to my groups, and let's take it forward, because I would love to take such a thing. It's such a beautiful thing which you're doing. It's not just building a community. It's spreading happiness which you're giving. Because sari, uh, like sari can revolve anything. Sari can cover anything, right? So you're covering every bit, every part of the society in this. So एक it's छोटी सी बात अगर मैं अपनी रखना चाहूँ यहाँ पर, zarur. कि हमने रंग साड़ी में हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, गठबंधन। गठबंधन एक वेडिंग मैगजीन है, जिसमें जब घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत सारी एजेंसीज हमें चाहिए होती हैं। आपको साड़ीज भी चाहिए, मेंस वेयर भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, इवेंट प्लानर भी चाहिए, गिफ्ट्स भी चाहिए, एवरीथिंग।
उस एक मैगजीन में वो सारी एजेंसीज आपको अवेलेबल है. एंड द बेस्ट पार्ट इज Wow. ऑल आर women entrepreneurs bearing a few. uh, they said ki, why are you leaving us men aside, why are you so gender biased? So we had to include them. Otherwise all are women entrepreneurs. And this magazine has a QR code on the cover page, so whosoever clicks on that QR code gets access to the entire magazine. So this way we are doing inclusivity and exclusivity of all the women entrepreneurs in our group, and so that they are promoted simultaneously. एंड आई बिलीव कि बहुत एक हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मैगजीन का. एंड जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, द नेम गठबंधन resonated so well with them. And I just hope, crossing my fingers for that, कि गठबंधन एक हाउस होल्ड नेम बन जाए, कि कोई भी शादी गठबंधन के बिना ना हो. और यही हमारा एक और मकसद है. और जैसे 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 आप अकेले चले थे और कारवां बढ़ता चला गया, बनता चला गया, और वही चीज है जो कि हमारे साथ हो रही है. आई एम श्योर ऊर्जा जी, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप होकर गुजर रहे हैं. और आई एम थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल दैट वी रिकॉर्डेड दिस पॉडकास्ट टुगेदर. And Gathbandhan, people will share the details though, but Sure. the Gathbandhan concept, even I felt resonated with that concept. It's like giving empowerment to everyone who is there. So thank you so much, Urja Nidhi ji. Your story is like a sari itself, woven with grace, grit, and vibrant meaning. Thank you for sharing your truth, your journey, and your light with us today. To everyone, thank you so much to for everyone, having me on board. thank you Please so. To everyone who is listening, remember, you don't need a business degree or a perfect plan. You need a purpose, a voice, and a little bit of urja. If you have been moved by this episode, follow Urja ji, subscribe to Let Urja Talk, and maybe, just maybe, take that first step you have been waiting on. And don't forget to subscribe this channel too. Yes, Urja ji, you were saying something. We'll wrap up with your thoughts. I'm feeling truly privileged and proud to be a part of this beautiful show, and letting me just express myself freely and actually candid, because this was something very close to my heart, and I just felt like expressing myself totally, being in my elements today. Thank you so much, audience, for watching us, for listening us so patiently, and subscribe to our channel, and where there'll be a lot more which would be coming in. And if you want, we should record another podcast with Urja ji, not on Zoom, but on a physical level. Then mention in the comments. We'll do that as well. Thank you so much, Urja ji, for taking out this time, and it's been a pleasure hosting you on this Trust Your Journey 1.0. Yeah, Radhe Radhe. Namaskar. Radhe Radhe.